Hello children, today we are going to start EVS of chapter 11 Sunita in Space. Some of the topics we have covered in part 1 which you can see in my YouTube channel Universal Facts. Now some of the topics which is left we will cover in this part 2. But before this, we will recall some of the points which we have done in part 1. How many points we have covered? See, first is straight from the heart. Second is what is our earth really like. Third is talking with Sunita. Fourth is Sunita's experiences of living in space. Next is, isn't it amazing? And last is, what are the lines really? Now I'll recall you this topic again, which will help you to understand the topic which we have done in part 1. So let's start. Where are the lines really? Sunita describes her view of the earth from the spaceship. सुनीता ने स्पेसशिप से अर्थ का व्यू कैसा देखा उसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रही हैं. ठीक है, द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. वो बताती हैं कि अर्थ स्पेसशिप से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग लग रहा था. वी could watch it for hours from the window of spaceship. और हम उस अर्थ को घंटों तक देख सकते थे. कहाँ से? विंडो ऑफ द स्पेसशिप, स्पेसशिप की विंडो से. स्पेसशिप इज बेसिकली अ व्हीकल which will help you to send space. We could clearly see the curved shape of the earth. और हम वहाँ से अर्थ का कर्व्ड शेप क्लियरली देख सकते थे. Look at this photograph of the earth taken from a spaceship. See, this is a photograph which has been taken from the spaceship. ये फोटोग्राफ आपको जो दिखाई दे रही है ये स्पेसशिप से ली गई है. ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अर्थ. ये अर्थ की पिक्चर है. We know from such photographs today we know what the earth looks like. और ऐसी ही फोटोग्राफ्स को देखकर हम पता लगाते हैं कि हमारा अर्थ कैसा दिखाई देता है. But thousands of years ago, people could only imagine what the earth looked like. लेकिन हजारों साल पहले लोग सिर्फ इमेजिन करते थे कि हमारा अर्थ कैसा लगता होगा. But they did not know कि हमारा अर्थ कैसा था. Scientists tried hard to find out how big is the earth. हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी ये पता लगाने में कि हमारा अर्थ कैसा है. ठीक है, हमारा अर्थ कितना बड़ा है. हाउ डज इट गो अराउंड, हाउ इट इज़ मूविंग, वो कैसे मूव करता है, कैसे घूमता है. ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चंस की आंसर किसने पता किए? हु हैज़ फाइंड आउट दीज आंसर्स? साइंटिस्ट. अवर साइंटिस्ट हैज फाइंड आउट ऑल दीज आंसर्स. उन्होंने ही ये सारे क्वेश्चन के आंसर बताए कि हमारा अर्थ कैसे मूव करता है, हाउ इट इज बिग, हाउ इट इज लुकिंग. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस किसने सॉर्ट आउट किए? बाय अवर साइंटिस्ट. नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल. नाउ there are some questions which is related to this topic. Okay, I explained you this one topic which will help you to answer these questions. So what you will do, you will find out the answer of these questions and write it in the book only. Okay, Uzaira and Shahmi are looking at different countries on the globe. Now the conversation starts of उज़ायरा एंड शहमीर. अब उज़ायरा और शहमीर की जो कॉन्वर्सेशन है अबाउट द ग्लोब, दे स्टार्टेड. अब वो स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, फिर से वो ग्लोब के बारे में बातें कर रहे हैं. नाउ they were talking. See, Uzaira
See, there are lines between the different countries on this globe. हुज़ायरा कहती है कि ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज हैं, they have given different lines, उनमें अलग अलग लाइन्स दी हुई हैं. Are such lines also there on the earth? क्या ये लाइनें अर्थ में भी होती हैं? शहमीर, there must be. तो शहमीर क्या रिप्लाई करते हैं? There must be. They are there on the map of India in this book. वो कहता है कि होती होंगी क्योंकि ये लाइनें मैप की जो बुक है उसमें भी दी हुई है. इंडिया का जो मैप है बुक में, उसमें भी ये लाइन्स दी हुई हैं. See, there are lines between the different states too. और वो कहता है देखो यहाँ पर स्टेट्स में भी अलग अलग क्या दी हुई है? लाइन्स दी हुई हैं. Uzaira, if we go from Delhi to Rajasthan, would we find such line made on the ground? तो उजायरा पूछती है कि अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या ये लाइनें ग्राउंड में भी दी होती हैं? ठीक है. Look at the map given in this book and tell. आप मैप को देखिए, ठीक है, और यहाँ उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं which you can solve in the book. Now, when Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. क्या कह रहे हैं? सुनीता बताती हैं, सुनीता ने जब अर्थ देखा था स्पेस से, ठीक है, उन्होंने जब स्पेस से अर्थ को देखा था तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा था? ब्यूटीफुल लग रहा था. Many thoughts came to her mind. उनके माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, बहुत सारी बातें आ रही थी. As she described it, और वो डिस्क्राइब कर रही हैं, यानी कि वो बता रही हैं. From so far away, one can only make out the land and the sea. वो बताती हैं, वो क्या डिस्क्राइब कर रही, वो कह रही हैं कि वहाँ से इतनी दूर से क्या कहती हैं? One can only make out the land and the sea. You can see the land and the sea. आप सिर्फ वहाँ से क्या देख सकते थे उतनी दूर से? ज़मीनें और सीज वगैरह. One cannot see the different countries. आप वहाँ से अलग अलग कंट्रीज नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ से आपको क्या लगेगा? हर चीज़ एक जैसी लगेगी. आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी स्टेट है, ये कौन सी कंट्री. आपको सिर्फ वहाँ ज़मीनें दिखाई देंगी, ठीक है, या फिर सीज ओशंस वगैरह दिखाई देंगे. डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज़ बीन डन बाय अस. वो बताती हैं कि ये जो कंट्रीज का डिवीज़न किया है, यानी कि जो कंट्रीज को अलग अलग लाइंस में डिवाइड किया है या स्टेट्स को अलग अलग लाइंस में डिवाइड किया है, वो सब किसने किया है? मेड बाय अस. हम ही लोगों ने किए हैं. All the lines on the map are made by us. मैप में आपको जितनी भी लाइनें दिखाई देती हैं, that was made by us. वो हमारे ही द्वारा बनाई गई हैं. They are in our mind. क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे माइंड में थी. That's why we have made all the lines of different countries as well as the states. I wish we all think about this. मुझे लगता है कि ये इस चीज़ के बारे में सभी सोचते हैं. Where are the lines really? कि कहाँ पर कौन सी लाइन होती होगी, ठीक है. Look at the sky. This is our next topic. Look at the sky. Now our next topic is look at the sky. Shahmeer, he closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. Now Shahmeer, what he has done? He closed his eye. ठीक है, उसने अपनी आईज बंद कर ली है और जो कॉइन है उसे क्या करा है? मूव करा है. Look, I can hide the moon behind this coin.
तो क्या करा, कॉइन लिया और उसे मूव किया। अब वो क्या कहता है कि देखो मैंने इस कॉइन से मून को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया, छिपा दिया है। उजायरा, वाओ, इमेजिन हाइडिंग अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। तो उजायरा क्या कहती है, वाओ इट्स अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छा है, इतना बड़े मून को, ठीक है। क्या होता है, मून जो होता है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब आप यहाँ से देखते हैं तो आपको वो क्या लगता है, बहुत छोटा लगता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, जब आप भी ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप कॉइन लेंगे, उसे मूव करेंगे, आगे को लेके जाएंगे और देखेंगे कि जो मून है वो क्या हो जा रहा है, स्मॉल कॉइन से हाइड हो जाता है। तो इन अ सेम वे उजायरा कह रही है कि इतने बड़े मून को एक छोटे से कॉइन से क्या किया जा सकता है, हाइड किया जा सकता है। Why don't you try to do the same with a coin? आप भी ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। How many centimeters away from the eye did you keep the coin to hide the moon? आपने क्या करना है, you will take a coin, और आपने कितनी सेंटीमीटर पे आप उस कॉइन को लेके जा रहे हैं, ठीक है, अपनी आईज से कितनी सेंटीमीटर पे आप कॉइन को लेके जा रहे हैं और कितनी सेंटीमीटर पे वो जो मून है वो हाइड हो रहा है, ये आपको पता लगाना है। नाउ द पोएट इज ऑल्सो रेजिंग such questions in the poem. Now there is one poem, okay, in the poem they arises some questions. उन लोगों ने कुछ questions इस poem में arise किए। Now let's start the poem. Twinkling stars, चमकते हुए stars, twinkle करते हुए stars. Stars are twinkling in the sky. वो क्या बोल रहे हैं, जो stars हैं वो sky में, ठीक है, आसमान में क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। Why do they twinkle? वो ट्विंकल क्यों कर रहे हैं? Tell me why, मुझे बताओ। How many can you see? कितने स्टार्स आप देख सकते हैं ट्विंकल करते हुए? Some seems near and some seem far. कुछ बहुत पास दिखाई देते हैं और कुछ स्टार्स बहुत दूर दिखाई देते हैं। Is there a name for every star? क्या हर स्टार का कोई ना कोई नेम होता है? How many can you see? कितने स्टार्स आपने देखे हैं? Can you count them? They shine so bright. वो बहुत ही ब्राइट शाइन करते हैं। In the dark of night. अंधेरे में वो बहुत ही शाइन करते हैं। Why do they hide in the morning light? फिर वो क्यों मॉर्निंग लाइट में छिप जाते हैं? How many can you see? कितने हैं आप देख सकते हैं? Some shining stars we know so well. कुछ ऐसे शाइनिंग स्टार्स होते हैं we know about it, जिनके बारे में हमें पता होता है। But every star has a tale to tell. लेकिन हर स्टार की कोई ना कोई टेल यानी कि कहानी होती है। How many can you see? और कितनी ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता है, आपने देखा है? ये जो पोम है who has written? अनवर इस्लाम, ठीक है, चकमक, December 2003, translated by Anpa Lal. Now next is, this is a poem, okay, page number 108. Okay, now we will start this one. An interesting photograph. This is a photograph, okay. A spaceship went to the moon. जो स्पेसशिप था वो मून को जा रहा था, मून को गया था, ठीक है। दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वॉज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। और ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही है, ये फोटोग्राफ मून से ली गई है अर्थ की, ठीक है। सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, देखिए कि अर्थ कैसा लगता है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या आपको मून का सरफेस, ये मून का सरफेस है, क्या आपको मून का सरफेस दिखाई दे रहा है?
ठीक है, डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर? क्या इस पिक्चर को देखने के बाद आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं? राइट डाउन दोज क्वेश्चन एंड डिस्कस देम इन द क्लास. ऐसे ही आप क्वेश्चंस लिखिए विच यू कैन डिस्कस इन द क्लास. नाउ we start our next topic, that is do your best and things will work out. What is the topic? Repeat the topic. Do your best. आप अपना बेस्ट करिए and things will work out. और चीजें अपने आप होती रहेंगी. ठीक है? Now let's start. When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong's landing on the moon. बता रहे हैं जब सुनीता 5 years old की थी, यानी कि 5 साल की थी, तो उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की क्या देखी थी? पिक्चर देखी थी, जो कहाँ गए थे? मून पर गए थे. इन 1969 में क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले पर्सन थे जो कहाँ गए थे? मून गए थे. लाइक एनी अदर चाइल्ड, सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड. और सुनीता की तरह जैसे बाकी बच्चे होते हैं, ठीक है, बाकी बच्चों की तरह सुनीता भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी, यानी कि वो उन सपनों को देख रही थी, उन सपनों को पूरा करना चाहती थी. ठीक है, सुनीता says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. सुनीता बताती हैं कि जब वो यंग हुई, ठीक है, तो उन्हें स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और स्विमिंग करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था. She was never too interested in studies. और उन्हें पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वॉन्टेड टू बिकम अ डाइवर. और वो बताती हैं कि मतलब आफ्टर कंप्लीटेड हर हाई स्कूल 10th करने के बाद वो क्या बनना चाहती थी? डाइवर बनना चाहती थी. डाइविंग करते ना, ठीक है, वो डाइविंग करना चाहती थी. बट शी could not get into that course. लेकिन वो उस कोर्स में नहीं जा सकी, उस कोर्स को वो नहीं कर सकी. ठीक है, आपने देखा होगा डाइविंग मतलब पानी के अंदर जाना. Instead she became a helicopter pilot. ठीक है, instead she became a helicopter pilot. One day she found out that if she studied and trained for it, she could join the space mission. और डाइवर बनने की जगह वो क्या बन गई? हेलीकॉप्टर पायलट बन गई. ठीक है, और एक दिन उन्होंने she find out that if she studied, उन्होंने देखा कि मतलब उन्हें लगा कि अगर मैं इस चीज़ की पढ़ाई करूं और ट्रेनिंग लूं तो क्या वो क्या ज्वाइन कर सकती हैं? स्पेस मिशन. यानी कि वो क्या थी? वो डाइवर बनना चाहती थी, लेकिन वो डाइवर ना बनकर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई. फिर उन्हें लगा कि अगर वो आगे और पढ़ाई करें और ट्रेनिंग लें तो वो स्पेस मिशन पर जा सकती हैं. एंड दैट इज व्हाट शी डिड. और उन्होंने ऐसा ही करा. उन्होंने क्या करा? उन्होंने आगे की पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी. ठीक है, In 2007, Sunita Williams get a new record for the longest space flight by a woman. और उन्होंने क्या करा? 2007 में सुनीता विलियम्स ने एक रिकॉर्ड बनाया, नया रिकॉर्ड बनाया, जो सबसे लंबा रिकॉर्ड था स्पेस में जाने का. ठीक है, वो फ्लाइट के थ्रू, स्पेस फ्लाइट के थ्रू स्पेस में गई. ठीक है, और उन्होंने बहुत लंबा रिकॉर्ड बनाया सारी विमेंस में, मतलब जो
आज तक जितनी भी विमेंस उस टाइम तक गई थी, उन विमेंस में वो एक ऐसी विमेन थी जो उन्होंने सबसे ज़्यादा समय बिताया था कहाँ, स्पेस में। सुनीता often gives her own example to tell children. सुनीता ने अपना एग्जाम्पल बच्चों को दिया और बच्चों से कहती है, if you want something, अगर आप कुछ चाहते हैं but you get something else, आप सपोज करिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप डॉक्टर ना बन के पायलट बन गए हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ चाहते हैं करना और वो चीज़ नहीं हो पा रही, उसके अलावा कोई और चीज़ हो जाती है, तो डू नॉट गिव अप। तो हमें उस चीज़ को, जो चीज़ हमें मिली है उस चीज़ को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। आपको उस काम में भी, जो काम आपको मिला है या जो चीज़ आपको मिली है उसमें अपना बेस्ट 100% देना चाहिए एंड द थिंग्स विल वर्क आउट। वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होती चली जाएंगी। उस चीज़ में भी आपको क्या होगा, कोई ना कोई बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। When Sunita was asked by a children what would she like to do in the future, जब बच्चों ने सुनीता से पूछा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं, तो शी आंसर्ड, उन्होंने क्या जवाब दिया, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर, मैं स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ, सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइफ। वो क्या कहती हैं, अब मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को ये चीज़ समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि साइंस और मैथ्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन होता है, लिंक्ड इन अवर लाइफ। जो ये दोनों का एक दूसरे से लिंक होता है और इन दोनों का लिंक हमारी लाइफ से रिलेट करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन दोनों का जो लिंक होता है वो हमारी लाइफ से भी कनेक्टेड होता है। सो दिस इज द होल चैप्टर, ओके। इन दिस होल चैप्टर वी हैव कवर्ड टॉपिक्स ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, व्हाट इज अर्थ रियली लाइक, ओके, टॉकिंग विद सुनीता, Sunita's experiences of living in space. Isn't it amazing? Where are the lines really? These topics we have covered in the first part, and in the second part we have covered look at the sky, poem twinkling stars, an interesting photograph, do your best and things will work out. These topics we have covered in part 2. I hope you have understood these all topics nicely and clearly. If you have any doubt regarding any of the topic, please see the video again, which will help you to understand the chapter nicely. Now we will start our next chapter in our next video. Till then, bye bye.